wait for some time? It's a network issue. Sure. I'm perfectly fine. Yes. Okay. Yeah. So, yeah, morning everybody, and I would like to welcome you all to another session of Jobs Readiness Program, which is about physical presentation. I'm pleased to welcome a special guest who is a veteran political analyst and a phenomenal actor and a motivational speaker who has given the highest number of TED Talks around the globe. May I please welcome Major Mohammad Ali Shah. Welcome, Major Shah. Thank you, sir. I request you to take over. Thank you, Angela. Dr. Sufi, would you like to say something? But I'm really glad that you have Impal has taken initiative and you are organizing this. I mean, these programs of yours is going to benefit the community and the country in a great deal. I'm so happy that you are doing this. It's very proud to be associated with Impal. Thank you very much for making me a part of this. You are most welcome. We are excited to have you. So let me see how many participants are there right now. So we have 19 participants. Let me know. Whenever you want like me to start, I am ready from my side. Whenever. You may begin. Shall I begin? All right. Okay. Firstly, I would like to welcome all of you to this webinar and thank you very much, Impar, for having me over. No, we are here to speak on a very important aspect. In these dark times, we call it the dark times of the pandemic. But how do we convert an adversity into an opportunity? A lot of companies are closing down, they are dehiring their employees. A lot of economy is suffering. But how do we still, जब तक आपके घर की इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी, तब तक हम देश की इकोनॉमी की हम क्या बात करेंगे हम? पहले अपने घर की इकोनॉमी सुधारें, तभी तो देश सुधरेगा. The society will not change unless and until we change our own selves. हमें पहले अपने आप को सुधारना पड़ेगा, अपने आप एक बदलाव लाना पड़ेगा, तभी पूरे देश में बदलाव आएगा. We talk about job readiness. How ready are we for the job? मेरा ऐसा मानना है कि जिंदगी में हर एक के जिंदगी में एक बार, जरूर एक बार, कम से कम एक बार, it can be more than that, सबके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती है, मौका आता है अपने आप को साबित करने का, to prove yourself, to show what you are ready with. सवाल सिर्फ इतना है कि जब वो मौका आए तब आप कितना तैयार हैं उस मौके को पकड़ने के लिए. How ready are you to grab it, to make the most of that opportunity? What is luck? हमें सुना होगा ना, लोग कहते हैं ऐसी किस्मत अच्छी थी, luck favor that person. When preparation meets opportunity,
It's luck. The harder I work, the luckier I get. But someone over there is also working very hard. But I can hear, it doesn't matter. I can make out you're working hard. That's why you've unmuted yourself. It's okay. It's good. I get the message. It's great. But you know what? अब ऐसा क्यों होता है? आपने गौर किया है कि आप सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, सबसे बेहतरीन क्वालिफिकेशन है आपके पास, still you will not, some of you or us will not get the job which is desired by us. And a lot many times we see a person who is not half as educated as you but doing very well in life. Why and how? I will tell you. I have always been of a firm believer to work for oneself. Be your own boss. Because we ourselves are the drivers of our own destiny. किस्मत अपने आप ऊपर से नहीं लिखी जाती. खुदा भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद करते हैं. आपको मैं एग्जांपल देता हूं. हालांकि मैं अंसारी साहब को, एंजेला को, मैं इम्पार के मेंबर्स को ये बता चुका हूं पहले. देखिए, 2019 में मेरे को पहला मौका मिला एक TEDx प्लेटफॉर्म पे बात करने का. जब मेरे को मेल आई, मेरे को लगा मेरे ज़हनी तौर पे कि गलती से मेरे पास आ गई है, वो किसी और मोहम्मद अली शाह की तलाश कर रहे हैं, मेरे को भेज दिए. तो मैंने उनको वापस लिखा, क्योंकि मेरे ज़हन में था कि जो अचीवर्स होते हैं, हाँ अचीवर्स, जिन्होंने जिंदगी में कुछ अकम्प्लिश किया होता है, वो ही TEDx पे जाते हैं. वो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलतफहमी थी मेरी. तो मैंने उनको लिया, और मैं अपने आप को कोई हाई अचीवर या कुछ वो नहीं मानता हूं. मैं बहुत मेहनत करता हूं और कर रहा हूं और जिंदगी भर करता रहूंगा. एंड आई एम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर. मैं स्टूडेंट रहा हूं और रहूंगा जिंदगी भर, जिंदगी का. तो मैंने उनको लिखा कि भाई आपने गलती से मेरे को ये मेल भेज दी है. आई एम नॉट द सेम मोहम्मद अली शाह यू आर लुकिंग फॉर. उन्होंने वापस लिखा और फिर फोन भी किया, उनके पास नंबर भी मिल गया था मेरा. नहीं, वी वांट यू ओनली. बात समझ में नहीं आई. मैं गया, अमृतसर गया मैं. और आपको मैं बताऊं, अमृतसर मेरे लिए खास क्यों है. 30 जुलाई को एक फिल्म रिलीज होने वाली है, उसका नाम है यारा. यारा में मैंने एक्टिंग करी है. उसमें एक सरदार की भूमिका निभाई है मैंने. उस पर तो मैं आऊंगा बाद में, खैर वो तो इतना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं एक पॉइंट से ये कनेक्ट करूंगा अभी आपको. और सी की भूमिका निभाने के लिए मोहम्मद अली शाह ने जसजीत सिंह का किरदार निभाने के लिए उसमें कन्वर्ट करना पड़ा, मतलब उस तरीके उसमें ढलना पड़ा, अली टू जसजीत. तो मैं अमृतसर गया, गोल्डन टेम्पल, वहां पे सेवा करी, झाड़ू पोछा, बर्तन, चाय बनाना, सब कुछ किया. सिगरेट छोड़ दी मैंने. सबसे अच्छी बात तो ये हुई, एक दिन में सिगरेट छोड़ दी मैंने. श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ी मैंने. भाई मैंने कुरान शरीफ तो पढ़ी हुई है, बचपन में पढ़ी थी हमने. इस बार मैंने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ी. एक और मजहब के बारे में सीखने को मिला. इसके बारे में कोई आपको कहीं पे भी कोई मीडिया बताएगी नहीं कि भाई इसने ये सब किया. जो आपके गलत काम है उसको उड़ा देगी हवा में कि भाई इसने ये किया, इसने वो किया, इसने ये फलाना ढमकाना. खैर, हाथ में कड़ा डाला, 6 मीटर की पगड़ी बांधी सीखी, दाढ़ी केश उगाए 2-2.5 साल, तब मैंने वो भूमिका निभाई है. तो खैर, कमिंग बैक टू अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ. मगर मैं जिंदगी में और जॉब से लेके, कैंपेन से लेके, एक ग्लोरिफाइड स्पॉट बॉय होने से लेके, फौज में सर्विस करने से लेके, कॉल सेंटर में काम करने से लेके, IIM कैलकाटा से मैनेजमेंट करने से लेके, कॉर्पोरेट में हाई इक्विलिब्रियम मीट करने से, तो इस तरीके से मैंने कई सारे काम करे. मॉडलिंग से लेके फिल्म इंडस्ट्री भी देखी है. अब मैं आपको बताऊंगा, मैंने एंटरप्रेन्योरशिप भी देखा है. सबसे बेहतरीन मेरे को क्या लगा, सबसे बेहतरीन लगा एंटरप्रेन्योरशिप. एक मोटिवेशनल स्पीकर से लेके, थिएटर आर्टिस्ट से लेके, मतलब आप नाम बोलिए, जो काम, जिस चीज की तजुर्बा मेरे पास नहीं होएगा. हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु, गुजरात से मिजोरम, गल्फ की कंट्रीज का नाम ले लीजिए जहां पे मैं नहीं गया हूं,
और जहां जहां पे मैंने अपनी कोशिश नहीं करी है। अब हम नौकरी ढूंढेंगे, ठीक है। अब फर्ज करिए मैंने फ्रेंच का कोर्स किया है, फ्रेंच का, डिग्री भी मिल गई मेरे को, सर्टिफिकेट भी मिल गया कि भैया फ्रेंच बड़ी अच्छी बोलता है मोहम्मद अली शाह। अब मैं गया फ्रांस, पेरिस, जहां से उतरा, एयरपोर्ट से चेकआउट किया, मैंने अपने बैग खोल के सर्टिफिकेट निकाला दैट आई स्पीक फ्रेंच, उसको अपने माथे पे चिपकाया। क्या फायदा भाई सर्टिफिकेट का, जब मेरे को आता ही नहीं फ्रेंच बोलनी, तो क्या फायदा सर्टिफिकेट का। अब मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि मैंने फ्रेंच का कोर्स किया है, मेरे को फ्रेंच बोलनी आती है, लेकिन हाँ काबिलियत जरूर है, एबिलिटी है, मेरे को फ्रेंच बोलनी हकीकत में यकीनन आती है, सर्टिफिकेट नहीं है। तो मैं फ्रांस गया, पेरिस में उतरा, वहां पे मैं किसी के पास गया, बोला बॉन्जो कवतालेबू, और उस तरीके से मैंने बात करी, एंड आई गॉट व्हाट आई वांटेड। मगर अगर मेरे पास सर्टिफिकेट भी है और काबिलियत भी है, तो मैं केवल वहां पे जाऊंगा ही नहीं, वहां जाके एक अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी मेरे को। मगर सबसे जरूरी बात है काबिलियत की। तो लास्ट ईयर जब TEDx का इनविटेशन आया, मैं अमृतसर गया, अमृतसर मेरे लिए खास, बताया क्यों खास है मेरे लिए। तो उसके बाद 15 मिनट के दौरान में, 15 मिनट की टॉक में लोग अमृतसर में खड़े हुए, मेरे को 3 स्टैंडिंग ओवेशन मिले उस टॉक के दौरान। वो टॉक यूट्यूब पे है, आप मेजर मोहम्मद अली शाह टाइप कर लेगा, मेरा यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करके, बहुत से टॉक्स हैं उसमें। खैर, लोग खड़े हुए, इज्जत दी बहुत। उसके एक हफ्ते के बाद आ गया हैदराबाद से ऑफर, मैं TEDx पे वहां गया, फिर 15 दिन के बाद रायपुर से आ गया। ऐसे करते करते हिंदुस्तान में वो दौर आया जहां पे कहीं पे TEDx का लाइसेंस किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास मिला हो और मेरे को ईमेल ना आई हो इनवाइट करके कि सर आप आके यहाँ बात करिए। अब मैं इंटरनेशनल स्पीकर बन गया, हिंदुस्तान के बाहर भी मैंने बात करी। अब मेरे को इसके पैसे भी मिलने लग गए, बाहर जाके लोगों को मोटिवेट करना। भाई HDFC लाइफ इंश्योरेंस बड़ी कंपनी है, वो पहली कंपनी थी जहां पे मेरे को एक कॉन्ट्रैक्ट के, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। ये वहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट के मेरे को ओवर $1 मिलियन मिले थे, यानी कि 10 लाख से ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट के। वो जरूरी नहीं है। और जब ये आपको बताऊंगा मैं क्या किस पॉइंट पे आ रहा हूं मैं, जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ ना, उससे पहले ही मेरे को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके से इनविटेशन आ चुका था कि आप आके यहाँ पे हमको एड्रेस करेंगे। भाई मैं एक फिल्म मेकिंग में इन्वॉल्व था जो प्रियंका चोपड़ा ने प्रोड्यूस करी है, कॉल्ड द ब्रोकन विंडो। हम असम में शूट कर रहे थे, तो उस कुछ काम उसका रह गया था, मैं वहां जा नहीं पाया। तो उन्होंने बोला आप नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, आप हमारे लिए एक वेबिनार अरेंज कर लीजिए। अब ये सेमिनार क्या होता है तो मुझे मालूम था, मेरे को इल्म था इसके बारे में, मगर भाई ये वेबिनार क्या होता है भाई, हैं? एंड आई हैव अ मेंटल ब्लॉक टू टेक्नोलॉजी। हाँ, टेक्नोलॉजी के बारे में मैं इतना ओपन नहीं हूं सीखने के लिए। उन्हें बड़ा सिंपल है, आप अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, डाउनलोड करिए, और हम आपको लिंक भेज देंगे। आप यू विल बी कनेक्टेड टू अस द वे आई एम कनेक्टेड टू यू ऑल राइट नाउ। अभी आप आपके साथ और आपके साथ, है ना भैया। मैंने अपना दिमाग वहीं बंद कर दिया, ना ना ना, मेरे को नहीं आती टेक्नोलॉजी, मैं नहीं सीख पाऊंगा। भाई टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो कभी भी किसी के साथ भी तासुब नहीं करेगी, किसी का नाम नहीं देखती, वो केवल काबिलियत देखती है। कंप्यूटर नाम नहीं पहचानता, काबिलियत पहचानता है। और तासुब तो होगा जिंदगी में, सबके साथ होगा, मगर मुसलमानों के खिलाफ नहीं, दलित के खिलाफ नहीं, जो कमजोर है उसके खिलाफ। जैसे कि अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है ना। तो वैसे ही हमको इतना मजबूत करना है। तो जब ये और सोचिए, इतनी अपनी बड़ी बेवकूफी की वजह से मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी नहीं जा पाया,
फिर जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ, मेरे को इजिप्ट जाना था टॉक देने के लिए, ठीक है, पूरा बंदोबस्त, तैयारियां हो चुकी थी, मैं तैयार था निकलने के लिए। तभी एक दिन में मेरी 8 टॉक्स बड़े बजट की बैक टू बैक कैंसिल होने लग गई। जो टेडेक्स पे जाना था वो भी कैंसिल होने लग गया। एक होता है जोश टॉक्स, और आप थोड़ा गूगल कर, उसमें है यूट्यूब पे मेरी जोश टॉक्स है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, वो भी सब कुछ कैंसिल हो गया मेरा। मैंने कहा भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, अब मैं इंतजार करूंगा कि ये पैंडेमिक, ये लॉकडाउन कब खुलेगा, 2 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में। मेरा ऐसा मानना है ये लॉकडाउन, तो लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा, सरकार का लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा मैं। सरकार अगर लॉकडाउन खोल भी दे कभी भी, इट इज लाइव्स अगेंस्ट लाइवलीहुड। जान है तो जहान है, मगर जहान है तो जान है। तो अगर आपको सरकार खोल भी दे लॉकडाउन, क्या इसका यह मतलब है कि वायरस बोलेगा कि भाई हाँ भाई दिल्ली सरकार ने तो लॉकडाउन खोल दिया है तो मैं जा रहा हूं, मैं आपको अफेक्ट नहीं करूंगा, आपको अटैक नहीं करूंगा? ऐसा तो नहीं है ना। वायरस फिर भी आपको पकड़ेगा अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा जहां एक तरफ मॉल्स, सिनेमा हॉल्स, रेस्टोरेंट्स, कॉफी शॉप्स, मार्केट्स, the leading coffee shops, leading companies were closing down, they were suffering losses, they were dehiring their employees. भैया स्कूल में, स्कूल बंद है ना, आज की तारीख में ये नौबत ऐसी आ गई है कि पेरेंट्स तो बोल रहे हैं कि हम उसकी फीस नहीं पे करेंगे, किस लिए पे करें, बच्चा स्कूल नहीं है, ऑनलाइन क्लास हो रही है। इवन आई एम अ पेरेंट, मैंने ये फैसला करा है कि भाई चाहे कितना भी मुश्किल हो हम फीस देंगे। Why? Because buildings don't make a school. It is the teachers, the staff, the support staff, the bus driver, the conductor, the gatekeeper, the didi, the bhaiyas, the ayas, who all together make a school. Your companions. और अगर हम स्कूल की फीस पे नहीं करेंगे तो स्कूल बंद हो जाएगा, और स्कूल बंद हो गया नुकसान हमारा ही होगा, और हम पढ़ लिख नहीं पाएंगे। आज की तारीख में कुछ एक चंद कम्युनिटी पीछे क्यों है? आई एम कोटिंग द फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह साहब। उन्होंने फरमाया था कि एक सेक्ट इसलिए पीछे है क्योंकि तालीम, एजुकेशन पे ध्यान नहीं है। अगर तालीम, एजुकेशन पे ध्यान रहेगा तो अच्छी नौकरियां मिलेंगी, फौज में जाएंगे, गवर्नमेंट सर्विस में जाएंगे, आईएएस में जाएंगे, आईपीएस में जाएंगे, आईआईटी में जाएंगे, आईआईएम में जाएंगे। और अगर अच्छी नौकरियां नहीं मिलेंगी तो वो कम्युनिटी पीछे रहेगी, और वो पीछे रहेगी तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रहेगी। इकोनॉमिकली बैकवर्ड रहेगी तो पैसे नहीं होंगे अच्छी तालीम देने के। So it's a vicious circle, you see. If you are poor, you will not be able to educate your next generation in a good school, good college. And if that is the case, you will not get good jobs. So it is our responsibility to ensure we make sacrifices, doesn't matter, it's okay. But our next generation should get the best education that we can give them. Because education is the only way forward. There is no other way. अब रही बात जॉब की, भैया इस पैंडेमिक में मैं जॉब कैसे तलाश करूं? मैं आपको किस्सा बता रहा था ना कि वो मॉल, सिनेमा हॉल्स बंद हो रहे थे। दूसरी तरफ मैं ये भी जानता हूं कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो प्रॉफिट्स ही नहीं, ना मल्टीफोल्ड प्रॉफिट्स कमा रहे थे, मल्टीफोल्ड इस पैंडेमिक में, इस लॉकडाउन में। सोचिए, कुछ ऐसा किया कि रात को सोने गए और सोते सोते पैसे भी कमा रहे हैं। कभी सोचा है कोई सोते हुए पैसे कमा रहा है? वक्त इतना बदल चुका है, मेहनत मजदूरी तो करते थे लोग, अभी भी करते हैं, मगर सोने से पैसे कब कमा रहा है कोई? मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक का फाउंडर है,
दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में आता है वो आज की तारीख में। और जब मार्क जुकरबर्ग ने एक मीटिंग बुलाई अपना कॉन्सेप्ट फेसबुक का इंट्रोड्यूस करने के लिए, आधे लोग तो मीटिंग में नहीं आए, ये क्या बकवास कर रहा है, किसी को भरोसा नहीं था उसके ऊपर। जो लोग आए उन्होंने कहा ये बकवास क्या कर लेगा, भागो यार, उन्हें इंटरेस्ट नहीं लिया। अब देखिए फेसबुक इतना बड़ा बन गया, दुनिया में हर एक के पास फेसबुक है तकरीबन मोटे मोटे तौर पे, और जितने लोग साइन अप करते हैं फेसबुक पे उतने पैसे वो कमाता है। जब वो सोता है लोग साइन अप करते हैं, वो पैसे कमा रहा है। और वो कंपनियां जो इसमें प्रॉफिट कमा रही थी इस पैंडेमिक पीरियड में, वो थी जो डिजिटल कंपनीज थी, जो ऑनलाइन कंपनीज थी। जैसे कि बताता हूं आपको, स्काइप, ये जूम अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जूम को, गूगल मीट, वेबएक्स, स्ट्रीम यार्ड, फेसबुक लाइव, इंस्टाग्राम लाइव, यूट्यूब लाइव, यू नेम इट, ये सब ऑनलाइन कंपनीज बहुत पैसा कमा रही थी। ये भी तो कंपनी हुई ना, मगर यहां पे इतने प्रॉफिट कैसे हो रहे थे? और जो ऑफलाइन कंपनीज थी वो भी कैसे कुछ पैसे कमा रही थी, कुछ कंपनीज जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज। सो मैंने बोला भैया, जब मैं फौज में था, when the going gets tough, the tough get going, ये मैंने फौज में सुना था और स्कूल में भी सिखलाई थी, ठीक है। अब मैंने कहा when the going gets tough, the tough get online। तो मैं कहा और कोई तरीका नहीं है, तो मैंने ये सारे एप्स डाउनलोड करे लॉकडाउन के वक्त, धड़ 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 धड़। अब डाउनलोड तो कर लिया भैया, चलाना नहीं आता मेरे को। ऐप तो आ गया भाई, हॉलीवुड तो पहुंच गए एक्टर बनने के लिए, ठीक है। वहां पे ऑडिशन कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, रोल कैसे मिल रहा है, ये मालूम नहीं। हॉलीवुड पहुंच गए, कोई भी पहुंच जाए। अब वहां जाके काम कैसे मिले, तो ऐप तो आ गए मेरे पास। तो मेरे को 2 दिन लगे, 2 दिन लगे ये सीखने के लिए। और पता है क्या हुआ उसके बाद? मैं आपको बताया था ना कि HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने ऑफलाइन मेरे को ओवर 10 लाख रुपीस दिए थे एक कॉन्ट्रैक्ट के। फिर उसके बाद और भी कंपनी आई, दे फॉलोड अप। भाई 2 घंटे के बाद आई वाज ऑन पेड वेबिनार्स बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक, और ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ। चाहे अर्ली मॉर्निंग हो, चाहे देर रात हो, चाहे दोपहर हो, शाम हो, सुबह के 3 बज रहे हो, 4 बज रहे हो। क्यों? क्योंकि वेस्ट में कुछ देश ऐसे हैं जहां पे, यहाँ पे हिंदुस्तान में रात हो रही होती है, वहां पे दिन हो रहा होता है। आई वाज ऑन पेड वेबिनार्स बैक टू बैक। और इस पैंडेमिक सिनेरियो में मैंने जो बिजनेस, जो रेवेन्यू, जो इनकम जनरेट करा, मेरे को उम्मीद भी नहीं थी ऐसा होएगा। मगर वो जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है। बंबई में, जिस इलाके में मैं रहता था, अभी मैं तो गाड़ी चला के आया हूं, बंबई से दिल्ली आ गया हूं, क्योंकि ऑनलाइन तो कहीं पे भी काम कर सकते हैं ना। तो मैं बंबई में जो इलाके में रहता हूँ, मलाड में, वहां पे मेरे आस पड़ोस में लोग मजाक करते थे कि भैया आपको तो इलेक्शन के लिए खड़ा होना चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि उस इलाके में जितने अंडर प्रिविलेज लोग थे, डेली वेज अर्नर्स थे, स्ट्रे एनिमल्स थे, उनकी मैं काफी मदद कर सका। वहां पे एक्टर हैं सोनू सूद, वो अपने तरीके से मदद कर रहे थे बड़े पैमाने पे, बिकॉज ही हैड द वे विद ऑल टू हेल्प। भाई मदद कौन नहीं करना चाहेगा किसी और की? हमको खुशी मिलती है दूसरे की मदद करने में। आपको मिलती, साहब आपको, और मैडम आपको भी, आपसे बात कर रहा हूँ, जी जी, मैं नाम नहीं लूंगा मगर आपसे ही बात कर रहा हूँ मैं। हम सबको खुशी मिलती है सबकी मदद करने में, है ना। मगर अगर हम दूसरे की मदद नहीं कर पाएंगे तो हमको इतनी खुशी नहीं मिलती। बट टू हेल्प समबडी यू हैव टू हैव द वे विद ऑल। आपको उस पोजीशन पे आना होगा। आप उसी पोजीशन पे नहीं है, यू डोंट हैव द वे विद ऑल टू हेल्प समवन, आप कैसे हेल्प करेंगे? मजरू सुल्तानपुरी ने कहा था, मैं तो अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मैं तो अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। और यही कहानी मैं कहूंगा, आई विल गिव इट टू इम्पार। आई हैव सेड दिस कोट, ये जुमला, ये मैंने इसलिए बोला है कि इम्पार की वही कहानी। इम्पार शुरू हुई
पैंडेमिक पीरियड में आज की तारीख में देखिए एम्पायर का दुनिया जहां में नाम, कहां का नाम नहीं है। जो अच्छा काम एम्पायर कर रही है, कितने लोग उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। हमको कुछ सीखना चाहिए वहां से। और एंड यू नो देयर सम कम्युनिटीज लाइक द बोरा कम्युनिटी, like the Banyas, like the Marwadis, like the Punjabis, they help each other out. They are business oriented. The Memons, they are business oriented. They are entrepreneurship oriented. अगर खुद के लिए काम करेंगे तो देखिए, मैं 9 to 5 नौकरी भी कर रखी है, मैंने खुद के लिए भी काम करता हूं मैं। तो मैं सोचा अगर नौकरी ही करनी है तो गवर्नमेंट जॉब। हम लोग कई बार, अक्सर कई लोग सेल्फ सेंसरशिप में आ जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, फौज नहीं जाना, फौज में तो ताजुब होगा मुसलमानों के खिलाफ, तो हम नहीं जाएंगे। ऐसा लोगों का गलत फहमी है, लोगों का मानना है, गलत फहमी है, नहीं होता ऐसा। फौज इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन विच इज वेरी सेक्युलर। कॉल आ रही थी, मैं अपना फोन इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैंने फोन को कॉल काट दी। Which means all religions are treated with the same respect all over. मेरे वालिद साहब, मेरे फादर इंडियन आर्मी के डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे से रिटायर हुए थे, नंबर 2 इन द कंट्री, हाईएस्ट रैंक। सो हेंस प्रूव्ड काबिलियत होती है भैया, तासुब नहीं होता। अब खैर, कमिंग बैक टू, मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करी, जैसे कि मेरा मानना था अगर मुझे नौकरी ही करनी थी तो फौज की नौकरी बेस्ट थी। वो नौकरी नहीं होती, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। लेकिन मैं बाहर आया फौज से और मैंने पढ़ाई करी IIM से। अब आई नो not everyone is privileged to get a government job, join the army or do from IIM. I will talk about them as well. I will address that as well. मगर जब मैं बाहर आ गया तो मैंने कहा अब कॉर्पोरेट लाइफ में भाई पैसे अच्छे खासे आते दिखे, वो कमाने शुरू करे, बचाए पैसे। मैंने एक छोटा सा घर ले लिया बंबई के आउटस्कर्ट्स, बंबई में। हा? अब वो लेके जब मैं बंबई गया, नौकरी छोड़ के कोई आमदनी नहीं आ रही थी, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, टफ लाइफ, हार्ड लाइफ, स्ट्रगल थी। आप वड़ा पाव पे जिंदा रहो। और ये बात है कि घर से मैं लेता नहीं, जो कुछ किया अपने दम पे किया, अपने आप अपनी बलबूते पे किया। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि देखिए जिंदगी में जितने भी लोग बड़े बने हैं ना, उन सब ने छोटे से शुरुआत करी है हमेशा। जिसको विरासत पे मिला वो डगमगा गया कहीं ना कहीं। जितने भी लोग, आप एग्जाम्पल देख लीजिए भाई, धीरू भाई अंबानी की कौन सी MBA डिग्री थी? कौन सा वो हार्वर्ड, वॉटन, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया था? वो तो पेट्रोल पंप से पंप अटेंडेंट थे गल्फ कंट्री में आए। मगर when there's a will there's a way, and the only thing that is stopping you is you yourself. अगर हम बोले कि आज की तारीख में काम नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो हम झूठ बोल रहे हैं अपने आप से, जो कि नहीं है। मैं मानता हूं नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? कभी एनालाइज करा है? सरकार नौकरी नहीं, अरे सरकार नौकरी क्यों नहीं क्रिएट कर रही भाई? इसकी बात नहीं है। सरकार नौकरी क्रिएट कर भी दे, हमें अपने गिरवार में खुद के झांकना चाहिए और पूछना चाहिए क्या हम में वो काबिलियत है उस नौकरी को करने की? है भी तो उसको सस्टेन करने की क्या हम तैयार हैं? हमारी तरफ से हम क्या कर रहे हैं? मैं किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं कह रहा हूं, मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल और एक रैशनल और एक बहुत ही सुलझी हुई बात कर रहा हूं, वो समझने की कोशिश करिए। सरकार क्या एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर देगी भाई? आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट खुद करनी है। एक लेडी है लीसा निकल्स, हाँ, लीसा निकल्स, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर मैं उनको दुनिया का सबसे बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर मानता हूं। उन्होंने कहा था जब मैं फंस गई थी, आई वॉज ब्रोक एंड आई वॉज ब्रोकन, माई सन वॉज जस्ट अ फ्यू मंथ्स ओल्ड, शी हैज सेड दैट, and my husband had gone to jail. At that time, I was so poor, I didn't have money to buy diapers for my son. And my son was crying. So I patted him on his back and I told him, don't worry, son.
your mama will never be this poor ever again. And she was waiting and expecting कि लोग उनको रेस्क्यू करेंगे, बेल आउट करेंगे, उनकी मदद करेंगे. कोई मदद नहीं करता दोस्तों. No one bails you out. No one comes to your rescue. It's a fact. You have to be your own rescue. God helps those who help themselves. हमें खुद अपनी मदद करनी होगी. और कैसे? भैया एक चीज को करने के 10,000 मिलियन तरीके हैं. एक चीज को करने के लिए कितने? 10,000 मिलियन से भी ऊपर. हम लोग वो तरीका सोचेंगे नहीं, अपनाएंगे नहीं. क्यों? भाई सोचना, मेहनत करना हो गया ना. Even if you're exerting your mind and thinking, it is hard work. And भाई हमें तो we don't like working hard. हम मजदूरी कर लेंगे, पत्थर तोड़ देंगे, रिक्शा चला लेंगे, लेकिन सोचेंगे नहीं. भाई जो कंपनी के बड़े बड़े लोग होते हैं ना, हम देखते हैं वो ऑफिस, एसी ऑफिस में बैठे हैं, सूटेड बूटेड, बैठ के काम पे काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जा रहे हैं काम करने के लिए. वो तो पत्थर नहीं तोड़ रहे, वो तो रिक्शा नहीं चला रहे, वो तो मजदूरी नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी मेहनत कर रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं. आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ. 2014 की बात है, ठीक है. एक फिल्म आई थी हैदर. मैंने हैदर में एक्टिंग करी थी और अलग गेटअप था. और हैदर में भी इसलिए विशाल भारद्वाज ने रोल दिया मेरे को क्योंकि मैं फौज में रह चुका था और रोल था फौजी का. तो मैंने वो गलमूछ होती है, वो अलग गेटअप में करी. हमारी आवाज तो नहीं जा रही थी ना वहाँ पे. हाँ जी, फिर से बोलिए. चलो ठीक है, मेरे से बात नहीं करी होंगी आप शायद. हैदर फिल्म थी वो. हैदर साहब यहाँ नहीं है अभी मौजूद, ठीक है. आप सोच रही होंगी कि हैदर साहब से बात कर रहा हूँ मैं. नगमा जी मुस्कुरा रही है, उनको लग रहा है कि पता नहीं क्या. ठीक है, खैर. अब हुआ यूं, हैदर को कई सारे माफ कीजिएगा, ये रेगुलर मैं फोन इस्तेमाल कर रहा हूं ना, तो ये रेगुलर कॉल आ रही है, इसलिए म्यूट होगी अपने आप, वो पॉज हो जाती है. तो खैर, अब हैदर को इतने अवार्ड मिले. एक फिल्म उस दौरान आई थी क्वीन. कंगना रनाउत थी, राजकुमार राव की पहली फिल्म थी. और मैं फिल्म फेयर में फ्रंट रो में सबसे आगे बैठा था. मेरे बाजू में कौन थे? सलमान खान, करीब में टाबू, क्या नाम है उन एक्टर का, जो एक पाकिस्तानी एक्टर आए थे ना, फवाद खान, वो थे. सोनम कपूर, ये सब मेरे आजू बाजू में बैठे हुए थे और हम फिल्म फेयर अवार्ड देख रहे थे. इतने में कुछ डायरेक्टर होते हैं, वो बेस्ट नॉमिनेशन का अनाउंसमेंट होती है. तो विकास बहल जो थे, जो फिल्म के डायरेक्टर थे, माफ कीजिएगा ये कॉल आ रही थी ना, इसकी वजह से ये इंटरप्ट हो गया. हाँ हाँ, थैंक यू सऊद हसन भाई. आपने कई लोग प्राइवेट मैसेज भेज रहे हैं, शुक्रिया. अगर आप ग्रुप में डाल दें वो मैसेज, सबके लिए बहुत आ रहे हैं. अब मुझे मालूम नहीं कि प्राइवेट आए थे पब्लिक, तो अगर लिखना है तो शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. तो ये हुआ यूं, तो विकास बहल का नाम नॉमिनेट हुआ था, तो वो गए स्टेज पे और वो उन्होंने माइक लिया, उन्होंने अवार्ड एक्सेप्टेंस स्पीच दी और बोला कि भाई मैं तैयारी करके नहीं आया था कोई स्पीच देने की, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मैं जीत जाऊंगा. जब हम फिल्म की शूटिंग करने वाले थे, उस दौरान मेरे फादर, जो मेरे को बहुत निकम्मा मानते हैं, उन्हें पूछा, तुम बेटा फिल्म बनाते हो, क्या काम करते हो? तुम कहानी लिखते हो फिल्म की? वो स्क्रिप्ट राइटर लिखता है. वो तो तुम डायलॉग लिखते हो, वो डायलॉग राइटर लिखता है. तो तुम कैमरा पकड़ के घुमाते हो और लगाते? नहीं, वो कैमरामैन करता है, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी होता है, वो करता है. तुम एक्शन कट बोलते हो? नहीं, वो तो उसके लिए असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं, वो करते हैं. तुम उनको नाचना गाना सिखाते हो सेट पे कैसे? नहीं, वो उसके लिए कोरियोग्राफर होता है, म्यूजिक डायरेक्टर होता है. अच्छा, तुम फाइट डुशुम डुशुम करना सिखाते हो? नहीं, उसके लिए फाइट मास्टर आता है. तो तुम करते क्या हो एज अ डायरेक्टर, एज अ फिल्म मेकर? तो उन्होंने सोचा, भाई मैं करता क्या हूँ? हाँ भाई, एज अ फिल्म मेकर मैं करता क्या हूँ, एज अ डायरेक्टर मैं करता क्या हूँ? तो उनके फादर ने बोला, अगले दिन मैं तुम्हारे सेट पे आऊंगा और देखूंगा तुम काम क्या करते हो.
तो फादर आए सेट पे, तंबू, त्रिपाल, वो क्या कहते हैं, शामियाना बिछा रखा था, डायरेक्टर की कुर्सी थी, कैमरा मच, नारियल फोड़ा गया, तो शुरुआत हुई। चाय मंगाई उनके लिए, खातिरदारी हुई पूरी अच्छी सी। फिर डायरेक्टर साहब ने बोला, अब मैं अपने फादर को थोड़ा शो ऑफ करता हूं, दिखाता हूं कि भैया हम भी कुछ काम करते हैं ना, निकम्मा नहीं है आपका बेटा। अब जब शॉट रेडी हो जाएगा तो मैं एक्शन बोलूंगा, दिखाने के लिए भाई कुछ काम कर रहे हैं ना भाई। शॉट तैयार था, ठीक है, डायरेक्टर साहब तैयार हो गए, एक्शन बोलेंगे। उससे पहले ही असिस्टेंट डायरेक्टर नंबर 1 AD1 ने जाके एक्शन बोल दिया। लो, उनका मौका हाथ से चला गया। अब सीन बड़ा अच्छा चल रहा था, अब मैं ना कट बोलूंगा, कट, कुछ दिखे कि भाई कुछ काम कर रहा है ना बेटा, तो कट, क्योंकि सीन इतना अच्छा चल रहा है, शॉट, उनका दिल नहीं था कट बोलने का। उससे पहले ही डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, कैमरामैन ने कट बोल दिया। क्यों? इसलिए नहीं कि एक्टर खराब थे या उनने गड़बड़ करी, नहीं, टेक्निकल, लाइट कुछ गलत एंगल से गिर पड़ी तो उन्होंने कट बोला। अब वो मौका उनका था, वो भी गवा दिया, वो कट भी नहीं बोल पाए। कुछ चंद घंटे उनके फादर वहां बैठे, देखा बेटा कुछ नहीं कर रहा है काम, कम्मा। माफ कीजिएगा भाई, दोबारा कॉल पे कॉल आ रही थी, खैर वो चले गए वहां से। और आज की तारीख में जिसने कुछ नहीं करा वो ही अवार्ड लेने आया है, वो ही अवार्ड एक्सेप्टेंस स्पीच दे रहा है। तो हम कई बार सोचते हैं कि जो डायरेक्टर साहब होते हैं बड़े बड़े ऊंचे कंपनी में, ऊंचे औहदे पे, वो कुछ नहीं करते, सबसे ज्यादा तो वही करते हैं। I'll tell you, they have a vision. All he did was, he said that, all he did was, he put a fine team together, a team of experts together. सब अपना अपना काम जानते थे, उनको साथ में लाके जोड़ दिया। एक बार उस टीम को साथ में लाके जोड़ दिया तो सब कुछ ऑटो पायलट मोड में चलने लग गया, अपने आप, खुद ब खुद। उनको ज्यादा मेहनत उस पर नहीं करनी पड़ी, मेहनत करनी पड़ी लेकिन सबको अपना काम मालूम था तो सबने अपना अपना काम करा। उन्होंने ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करी दूसरे के काम पे, अरे कैमरा ऐसे करो, क्योंकि उसको इल्म नहीं है इतना। ही इज अ वेरी गुड कैप्टन ऑफ द शिप। तो जो हेड होता है, ही इज अ विजनरी, उनको दिखता है, अब वो बांटेगा काम, ये काम, ये। कई बार लोग सोचते हैं अरे मेहनत, पत्थर तोड़ने के लिए कोई चाहिए तो वो तोड़ रहा है, ठीक है, उसको असेंबल करके प्लान करके लगाने के कोई चाहिए, वो अपना काम कर रहा है। बट मैं तो ये बोलूंगा, टेक्नोलॉजी सीख लें हर कोई, आप तो है ही हैं। मैं देख रहा हूं लोग मेरे फादर की उम्र के भी हैं यहाँ पे, शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम। और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको देख के कि आप लोग जूम पे आए, आप लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं। और जिन लोगों को नहीं आता है उनको सीखना पड़ेगा। अब ये अपने आप दिल से पूछिए, आज की तारीख में सबके पास मोबाइल फोन है, सबके पास, जो डेली वेज अर्नर्स हैं, जो मजदूर हैं, उनके पास भी, तकरीबन जो रिक्शे वाला है उसके पास भी। और जब ये मोबाइल फोन शुरू में आया था, हमको आदत नहीं थी मोबाइल फोन की, हमारे लिए बहुत ही डिस्कम्फर्ट था, अरे क्या मोबाइल फोन। अब तो आदत पड़ चुकी है। जब व्हाट्सएप आया था, हमको आदत नहीं थी व्हाट्सएप की। मेरे पास तो व्हाट्सएप तो बहुत लंबे टाइम तक नहीं था, व्हाट्सएप में हाल ही में इस्तेमाल करना शुरू किया है मैंने। जूम आया था, अब जूम, गूगल मीट, वेबएक्स इज लाइक अ व्हाट्सएप, इट्स द न्यू व्हाट्सएप। So this situation is the new normal. New normal का मतलब ये नहीं है कि मेरा मानना है कि 3 साल चलेगा तो मैं बाहर जाके खेलने लगूं, घूमने लगूं ना। बाहर जाइए, बेशक जाइए, तभी जाइए अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी हो तो। नहीं, मैं सावधानी बरती है, मेरे को कुछ नहीं होएगा। अरे ये इतने पेशेंट आ रहे हैं ना, इन्हें भी कहा था, क्या इनका मतलब ये इन्होंने सावधानी नहीं बरती? They were careless, they were not, they took precautions.
दे डिडंट गो आउट घूमने के लिए, वो अपनी रोजी कमाने बाहर गए थे, उनको हो गया। तो इस पैंडेमिक सिनेरियो में अब कब खुलेगा, मतलब सरकार का नहीं, कब वायरस यहां से जाएगा। और दूसरा है अपने लिए काम करें, सोचें कुछ क्या तरीका है, किस में मैं अच्छा हूं। आपको मैं बताता हूं, मैंने मोटिवेशनल टॉक्स करी हैं, आपको बताया, ऑनलाइन प्लेस करे हैं, नाटक करे हैं। मुंबई थिएटर गाइड एक बहुत बड़ा ऑनलाइन पोर्टल है जो थिएटर करवाता है। विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल में मैं विजिटिंग फैकल्टी हूं, हमारी क्लासेस होती हैं ऑनलाइन बच्चों के साथ, उनके साथ कंबाइन करके मैंने ऑनलाइन प्लेस परफॉर्म करे। अब 30 तारीख को फिल्म आ रही है यारा, हिमांशु धुलिया ने बनाई है, वो आप जरूर देखिएगा, सरदार की भूमिका है, आप पहचान नहीं पाएंगे मेरे को। 31 जुलाई को एक वेब सीरीज आ रही है। इसके बाद और ऑनलाइन जो मैंने काम किया था पहले वो ऑनलाइन रिलीज हो रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि आप सब इस जरा दिमाग लगाइए। आई विल टेल यू अ स्मॉल लिटिल पोएम फॉर दीस टफ टाइम्स। ओके, दीस टफ टाइम्स एवरीथिंग हैज गॉन रॉन्ग। अरे लॉकडाउन ने सब बिगाड़ दिया, वायरस ने सब बिगाड़ दिया। हम सब ने कहा है हम तो ये करने वाले थे, लेकिन फिर ये वायरस कहां से आ गया पता नहीं, और ये बिगड़ गया। When things go wrong, as is sometimes well, when the road you are trudging seems all uphill, when the funds are low and the debts are high, and you want to smile, but you have to sigh. When care's pressing you down a bit, rest if you must, but don't you quit. See, life is strange, huh? With its twists and turns. And many of us sometimes learns. And many a person turns about when he might have won, had he stuck it out. So don't quit. Though the pace seems slow, you may win with another blow. Often a struggler has given up when he might have captured the victor's cup. And you cannot tell how close you are. It might be near when it seems afar. Success is failure turned inside out, the silver tint in the clouds of doubt. So don't quit when you're hardest hit. It's when things seem worst. You must not quit. तो हिम्मत मत हारिए, हौसला मत हारिए, हिम्मत रखिए, सब कुछ हमारे दिमाग में है। एक फोटोग्राफ है, एक बिल्ली जो है वो एक आईने में देख रही है, और वो आईने में उसको क्या नजर आ रहा है? उसको एक शेर नजर आ रहा है। We are nothing but a mere reflection of our thoughts. अगर उसको एक बिल्ली नजर आती तो वो बिल्ली ही रहती, उसको अगर चूहा नजर आता तो चूहा बन जाता। What is a mental block? Mental block is, एक घोड़ा है, वो बंधा हुआ है रस्सी से। अब वो एक पेड़ पे नहीं, एक ब्रांच से बंधा हुआ है, लॉग, वुडन लॉग, कटन, इट्स अ कट लॉग। उसके जहन में है कि मैं यहां से दौड़ नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं इस वुडन लॉग से बंधा हुआ हूं। तो वो दौड़ता नहीं है, वो अटेम्प्ट भी नहीं करता है। लेकिन वो अगर चाहे तो वहां से दौड़ सकता है, भाग सकता है, कैंटर कर सकता है, गैलप कर सकता है, ही कैन ट्रॉट, ही कैन डू व्हाट ही वांट्स। मगर वो खुद वो तैयार नहीं है ये करने के लिए। मछली नहीं होती, मछली, एक्वेरियम, एक एक्वेरियम में मान लीजिए ये ग्लास है, ये फिश का एक्वेरियम है, इसमें मछली तैर रही है, ठीक है। अब फिश, मछली आएगी, आप तैर रही होगी, आप बीच में एक ग्लास पेन डाल दिए, एक दीवार डाल दी है उनके लिए, तो मछली आएगी, दीवार पेन पे टकराएगी और पीछे मुड़ जाएगी, फिर मछली आएगी, टकराएगी, पीछे मुड़ जाएगी। अब आप वो ग्लास पेन हटा दीजिए, अब क्या होएगा साहब? मछली आएगी, कोई बीच में दीवार नहीं है, मछली खुद ही
कोशिश भी नहीं करेगी कि मैं उसके थ्रू जाऊं, मछली वहीं पे पीछे मुड़ जाएगी और चली जाएगी। दैट्स अ मेंटल ब्लॉक। हमें इसी पे तो काम करना है दोस्तों। अपने बेचारेपन पे रहोगे तो अपने बेचारेपन में ही रहोगे। आगे बढ़ो, देखो क्या है जिंदगी में। और नौकरियां बहुत सी हैं, किस तरीके की नौकरी आपको चाहिए है वो सवाल है। भाई मेरे को भूख लगी है, मेरे को बिरयानी खानी है या वड़ा पाव खाना है, मर्जी आपकी है। पेट भरना है, अगर मेरे को अपना पेट भरना होगा तो मैं वड़ा पाव खा लूंगा और उसे खुश भी रहूंगा, दाल रोटी चटनी रोटी खा के खुश रहूंगा। डॉक्टरों ने हमें सिखा दिया, हमारी जरूरतें बहुत कम है। एक लास्ट आखिरी सवाल आपसे करूंगा, आपसे क्वेश्चंस पूछने से पहले, हु इज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है? ये मत कह देगा बिल गेट्स या वॉरेन बुफे या मार्क जुकरबर्ग या हिंदुस्तान में अंबानी, ये मत बोल देगा। मैं बताता हूं आपको कौन है। आप बोलेंगे जो खुश है, बिल्कुल एक तरीके से वो भी बात सही है, लेकिन दुनिया का, शक्ति सिंह ने बोला वी, बिल्कुल सही फरमाया। दुनिया का सबसे अमीर इंसान वो है जिसकी सबसे कम जरूरतें हैं, एंड वन हु सैटिस्फाइड विद हरसेल्फ। बिल्कुल हदिका जी ने बिल्कुल सही फरमाया, जिसकी सबसे कम जरूरतें हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो ये फिल्म आ रही है ना यारा, उसका आपको एक लाइन है उसमें, इन चारों के शौक तो, इनके जरूरतें कम थी मगर शौक बड़े बड़े। जिसकी सबसे कम जरूरतें होंगी ना, सबसे अमीर आदमी वो है। आपके पास आज की तारीख में मर्सिडीज हो जाए, बीएमडब्ल्यू हो जाए, ऑडी हो जाए, आपको चाहिए होगी जैगुआर, जैगुआर मिल जाए आपको चाहिए होगी रोल्स रॉयस, रोल्स रॉयस मिल जाएगी आपको चाहिए होगी चार्टर्ड एयरक्राफ्ट, चार्टर्ड एयरक्राफ्ट मिल जाएगा आपको चाहिए होगा रॉकेट, आपको रॉकेट मिल गया आपको जाना होगा जहाज पे मून पे, फिर आपको होना चाहिए मून पे 5 स्टार होटल। तो कभी आपकी जरूरतें खत्म ही नहीं होंगी। वो आपको तय करना है कि कहां तक आपकी वांट है, कहां तक आपकी जरूरतें हैं। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत सुनने का। आपने बहुत ही सरबर से, बहुत तसल्ली से सुना। थैंक यू वेरी मच। मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है मोहम्मद अली शाह के नाम से, उसको आप अगर देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मेरी बहुत सी मोटिवेशनल टॉक्स हैं, 350 से ऊपर वीडियोस हैं उसमें, मेरी टेडेक्स टॉक्स हैं, वो सब आपको मिल जाएंगे। और आप शेयर करेगा, सब्सक्रिप्शन इज फ्री, शेयरिंग इज फ्री, इट ओनली हेल्प्स आउट टू फॉर मी टू रीच आउट टू अ वाइडर ऑडियंस। और 30 तारीख को यारा जरूर देखेगा, उसमें मेरा काम है कि मैंने वो क्रिएट कैसे किया। भाई दाढ़ी चिपका के असी तुसी करना तो बहुत आसान है ना, और मैं दाढ़ी उगाई और मैं ठेठ पंजाबी सीखी है, जरूरत नहीं थी उसकी। मगर जब तक मुझे खुद यकीन नहीं आएगा कि मैं अली नहीं जसजीत हूं, मैं आपको या किसी और को कैसे यकीन दिलाऊंगा? मुझे तो यकीन आना चाहिए ना। चलिए एक छोटी सी कहानी और सुन लीजिए, उसके बाद मैं यहाँ पे समाप्त करूंगा। फिर आपसे यू कैन आस्क मी क्वेश्चन एंड आई हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड फॉर यू। फॉर एम्पायर आई हैव ऑल द टाइम 24/7, देर रात हो अर्ली मॉर्निंग हो, एम्पायर का आ गया, डन। दैट्स माय फर्स्ट प्रायोरिटी बाय द वे, बिकॉज दे आर डूइंग गुड वर्क and anyone who does good work, it will be our first priority for all of us. Am I right? Yes, सब हिर से ला रहे हैं, मतलब yes। कहानी ये है, a man enters a sculptor's chamber। 1 मिनट की कहानी है, ठीक है। a man, agreed, शक्ति सिंह बोलते हैं। a man enters a sculptor's chamber। sculptor is making a chamber, a statue, and he is greeted by a very beautiful statue। और वो देखते हैं स्कल्पटर बिल्कुल हूबहू उसी का रेप्लिका बना रहे हैं, उतना ही खूबसूरत स्टैचू बना रहे हैं, शायद उससे भी ज्यादा खूबसूरत। तो बोलता है अरे ये स्टैचू तो मैंने एंट्रेंस पे देखा था, बड़ा खूबसूरत, आप वो ही बना रहे हैं? तो वो मेरे को दे दिए ना, उसको मैं तोड़ के फेंकूंगा, उसको मैं डिस्ट्रॉय करूंगा। क्यों? इतना खूबसूरत स्टैचू, लाहौल वाला खूबसूरत, उसको क्यों आप डिस्ट्रॉय करेंगे? ना भाई उसमें ना एक डिफेक्ट है। क्या डिफेक्ट है उसमें? उसमें ये डिफेक्ट है कि उसके बाएं कान के पीछे एक व्हाइट डॉट है जो गलती से आ गई है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। हाँ, मैं देख के आता हूं,
वो देखते हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं, उनको तो कोई डिफेक्ट नजर नहीं आता, ना ही वो डॉट नजर आती है चंद्र बिंदी की तरह। कहते मेरे को नजर नहीं आ रही। हाँ, आपको नजर नहीं आएगी, हो सकता है किसी और को भी नजर ना आए, लेकिन मुझे मालूम है इसके बारे में और मेरे को नजर आएगी। और क्योंकि वो मेरे को नजर आएगी तो मैं चैन से नहीं बैठूंगा, उससे बेहतर काम करके दिखाऊंगा। दैट इज कॉल्ड परफेक्शन। और यही परफेक्शन मैंने फौज में भी सीखा था। तो आप कंपटीशन करिए, बिल्कुल करिए, अपने आप से करिए, किसी दूसरे से नहीं। पता है, जब हम ऊपर अच्छा कर रहे होते हैं, जब हम जिंदगी में अच्छा ऊपर चढ़ रहे होते हैं ना, कुछ चंद लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिंदगी में आपके इस दौरान में जो आपको नीचे खींचे। मैं आपको इम्पार का एग्जांपल देता हूं। कुछ चंद लोगों ने कैंपेन चलाई थी कुछ टाइम पहले इम्पार के खिलाफ। भाई क्यों? भाई कोई अच्छा काम कर रहा है, आपको आपसे सह क्यों नहीं हो रहा है? वो अच्छा काम देखिए ना आप। और जब आप ऊपर जा रहे होंगे ना, अच्छा काम कर रहे होंगे और लोग नीचे खींच रहे होंगे ना, उनको आप जवाब मत दीजिए पलट के ना। डोंट वेस्ट एनर्जी ऑन देम। आप अच्छा काम करते रहिए, ऊपर चढ़ते रहिए, नाखून गाड़ के आप चट्टान में ऊपर चढ़ते रहिए। आप कुछ टाइम के बाद देखेंगे आप ऊपर चढ़ते गए, इतने ऊपर चढ़ गए, और वो लोग जो आपको खींच रहे थे नीचे, वो वहीं के वहीं हैं। अरे वो तो वहीं के वहीं हैं, उनको वहां से ऊंचाई से उनको वहां देखने में बड़ा मजा आएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि वो लोग तो वहीं के वहीं हैं और आप तो वहां चढ़ गए। और आपको ताजुब होगा ये देख के, उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो खैर हो सकता है हमारे जान वाले हों, उनसे सहन नहीं हो रहा कि आप, मगर उनको आप जवाब मत देगा, बिल्कुल आप चढ़ते रहिए। और यही तरीका है कुछ अपने लिए करने का, और यही तरीका है नौकरी में सफल होने का, यही तरीका है अच्छी नौकरी मिलने का, उसको सफल करने का। और नौकरी ही नहीं, नौकरी का मतलब ये नहीं है कि आप नौकरी करें कहीं पे, अपने लिए नौकरी करिए। आई एम ऑफ द प्रॉपर, आई एडवोकेट एंटरप्रेन्योरशिप। अपने लिए काम करिए। भाई हम एक बड़ी कंपनी में, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में क्यों काम करें? एक छोटी कंपनी स्टार्ट करिए और उसको मल्टीनेशनल बनाइए। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. That was a wonderful session, a very inspiring lecture. Do you have any questions? शाहिद भाई ने पूछा है, श्योर सर वी विल सब्सक्राइब टू यू। कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन टेक ऑन, अदरवाइज इफ यू वांट मी टू कंटिन्यू आई कैन कंटिन्यू। मैंने सेशंस दिए हैं 18 मिनट से लेके 18 घंटे तक, ठीक है, बिना थके। इतनी एनर्जी और स्टैमिना तो है भाई, इतना आप यकीन करें, दिन और रात हो। मोहम्मद अली शाह साहब, मैं रिजवान बोल रहा हूँ। जी सर, ऑफ कोर्स आई नो यू वेरी वेल सर। हाँ, तो कैन वी हैव सम टॉक ऑन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, व्हिच वाज बेसिकली द टॉपिक फॉर टुडे। व्हाट यू हैव सेड इज क्वाइट गुड, बट इट इज मोर ऑफ अ मोटिवेशनल काइंड ऑफ अ लेक्चर. You have not touched upon the subject of personality development. So can personality you have some development. Can you have some Most points on that? Most certainly, sir. Most certainly. It's a very simple thing. It's nothing but it is common sense. Personality development is image building. See, अगर मैं फर्ज करिए आज की तारीख में आपसे बात करने के लिए in my night suit I would have come and spoken to you all, or wearing a banyan, फर्क पड़ता, मगर मैं शर्ट टाई पहन के आया. That is a personality. I see, either you be good looking or you choose to be looking good. Choice is yours. Good looking तो हमारे हाथ में नहीं है ना, वो तो हमें विरासत में मिला है हमारे घर वालों से, हमारे पेरेंट्स से. बट लुकिंग गुड तो हमारे हाथ में है. और मैं ये भी कहूंगा इस पैंडेमिक में खास तौर से ये बहुत ही सिंपल है. पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज वेरी वेरी सिंपल. Having a good personality is up to us. If we are well read, we will come across as intellectual. We will be able to exude a positive vibe. और जो वाइब्रेशंस हैं, जो अच्छी वाइब्रेशंस हैं, वो पहुंच जाती है इंसान तक. वो कई लोग अक्सर ऐसा कहते हैं कि you radiate positivity, you radiate good energy. क्यों? इसलिए because I believe in it. You have to be convinced. और जो मैंने आपको मोटिवेशनल टॉक दी है, वो एक तरीके से अगर आपको कोरिलेट करेंगे, इट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन द सेंस यू शुड लुक द पार्ट. जैसे कि मैंने आपको जब बताया, जब मैं सरदार की भूमिका किरदार निभा रहा था तो मैं सरदार बन गया था, एंड आई स्टार्टेड बिहेविंग लाइक सरदार. आई हैड टू स्पीक लाइक पूरा भी कर ले रे, किताबा नहीं देना कुछ है,
अरे वद्या नाल गल करन दी अकल होनी चाहिए है, अरे गुडवानो मुड़ के नहीं देखता कांजरे। तो उस तरीके से को बोलना आ गया, because I look that part. So you have to look that part. When you look that part, you will behave that part, and when you behave that part, you will perform. That is basic personality development. Now, a lot of people are very good in technology, but they are very weak at communication. I'll give you another example, sir. 1998 में क्या हुआ, जब मैं कॉलेज गया था पूना में, तो मेरा एक दोस्त था और एक मैं था। हम दोनों एक रेस्टोरेंट में घुसे, वैशाली करके एक रेस्टोरेंट है एफसी रोड पे, बहुत शानदार रेस्टोरेंट है। वहां पे एक बहुत ही खूबसूरत मोहतरमा वहां बैठी हुई थी। तो मेरे साथ जो जनाब थे, उन्होंने उनको देखा, उन्होंने बोला, अली वो हमें तरफ देख रही है, हमसे बात कर रही है। मैंने नहीं यार, मैं बहुत एक तरीके से शर्मीला आदमी हूँ, तो मैं वहां पे मैं देखा नहीं, मैंने अरे वहां मत देखो भाई। और वहां की यकीनन she was looking at us and she was telling us, where were you? I have been waiting for you all. Come and join me for a cup of coffee, please, please. तो हमने कहा भाई यार वो तो सच में बात करी। तो मैं तो शर्मिला आदमी चला गया वहां से। मेरा दोस्त उसके पास गया, कुर्सी खींची, वहां बैठने वाला था। तो उन्हीं मोहतरमा ने उस टाइम पे यहां से अपना फोन जिसपे वो बात कर रही थी, फोन निकाला, कॉल काटी, और जो साहब उनके बाजू में बैठे थे उनको बोला, वेटर 2 ब्लैक कॉफीज प्लीज। उनको लगा वेटर आया हुआ है यहाँ पे। दैट इज कम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन। कई बार अक्सर क्या होता है, a lot of rifts happen because you intend, आपकी इंटेंशन तो सही थी, करने का तरीका गलत हो गया होगा, miscommunication. Again, it is part of the personality development again. We are nothing, I told you, we are nothing but a mere reflection of our thoughts. मैं आपको बताया था एग्जाम्पल ऑफ बिल्ली दिख रही है आईने में, पर्सनालिटी। अगर मैं अली अपने आप, मैं जब बचपन में था सर, मैं 2 शब्द नहीं बोल पाता था। मैं दुनिया का सबसे छोटा नाम मेरा होगा अली, ALI। अपना नाम नहीं बोल पाता था लोगों को। कोई पूछता था कि बेटा यहाँ आओ, तुम्हारा नाम क्या है, शर्माता था मैं, हकलाता था, तुतलाता था, अटकता था। I would stutter, stammer, I was so underconfident. मेरी कोई पर्सनैलिटी नहीं थी। एक दिन मैं स्टेज पे गया स्कूल में और अपनी लाइनें भूल गया। बच्चों ने बहुत मजाक उड़ाया, I was always teased, bullied, made fun of. I used to constantly ask myself, am I good enough? Am I smart enough? क्या मेरे में वो काबिलियत है? मेरा कोई भी दोस्त नहीं बनना चाहता था बचपन में, कोई दोस्त था भी नहीं मेरा। Always isolated, kept away, और कोई पर्सनालिटी क्योंकि थी ही नहीं। फिर जब मैं स्टेज पे लाइनें भूला, उस दिन मैं बहुत रोया। रोने के बाद मैंने अपनी इंग्लिश रीडर ली और आईने के आगे बैठा और मुंह में पेंसिल लगाई और वही लाइनें विलियम शेक्सपियर की और क्या क्या मैंने बोलने शुरू करी। बोलनी शुरू की तैयारी हो गई। फिर इंग्लिश क्लास में मैंने हाथ ऊपर किया, मैंने पढ़ूंगा, और बहुत फराटे से अंग्रेजी में पढ़ा मैं। सबने तालियां बजाई। एंड आई रियलाइज्ड माय पर्सनैलिटी, माय कॉन्फिडेंस स्टार्टेड इंक्रीजिंग फ्रॉम देयर। और अगर हमारे पास किसी चीज का इल्म नहीं है और हम उसके बारे में, मैं कई बार अक्सर टीवी पे डिबेट करता हूं, मैं देखता हूं कि लोग टीवी पे चिल्ला रहे जरूर हैं, चीखते हैं बंदरों की तरह, माफ करना। और मैंने कभी नहीं किया आज तक मैं रिकॉर्ड रहा है, कभी भी मैं बंदर नहीं बना, थैंक गॉड। टीवी पे मैंने पॉइंट पुट अप करा है, हाथ ऊपर किया है, फैक्ट के साथ, लॉजिक के साथ, और सब लोगों ने बोला भाई जिस तरीके की पर्सनालिटी है वो झलकती है। दैट इज because I was calm, composed, I knew my matter, I knew my beans, I had my knowledge about that subject. So ये है personality is very important. Dressing up, भाई शेव करिए, उल्टा शेव मारिए। हम लोग फौज में तो उल्टा शेव करते हैं, उल्टा शेव करिए अपने लिए। एक मिनट, किसी ने बड़ा अच्छा इत्र लगाया, अभी मेरे को यहाँ पे महक आ रही है यहाँ तक, किसने लगाया है? आप में से कोई होंगे। तो अपने लिए स्मेल गुड इत्र लगाइए, उल्टा शेव करिए, अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छा महसूस करें। हम अच्छा महसूस करेंगे। एक एक्टिंग स्कूल में जहां पे मैं पढ़ाता हूँ, विस्लिंग वुड्स में, वहां पे एक सेइंग है, a man is as handsome as he feels he is, a lady is as beautiful
as she feels she is. Have to feel good about us. हमें अपने बारे में अच्छा महसूस करनी है, और ये आएगा मोटिवेशन से भी. और कहते हैं मोटिवेशन डज नॉट लास्ट. ठीक है, मानता हूं. हमें रोज अपने दांत ब्रश करने पड़ते हैं, सुबह शाम. रोज नहाना पड़ता है, वुजू करना पड़ता है, हमें कपड़े इस्त्री करने पड़ते हैं. Even that doesn't last. करना पड़ता है ना. You have to keep doing it. Similarly, keep motivating yourself. मगर दुनिया का सबसे बेहतरीन मोटिवेशन स्पीकर, मोटिवेटर कौन है दुनिया का? ये मत बोल देगा कि लीसा निकल्स हैं या मेजर मोहम्मद अली शाह हैं या ना. आप खुद हैं. जब तक हम अपने आप अंदर से मोटिवेट नहीं होंगे, हमें डिजायर नहीं होगी मेरे को पानी पीना है और मेरे को प्यास नहीं लगेगी, खुद वो आग नहीं होगी, हम नहीं पी पाएंगे. पानी तो रखा है, पी नहीं रहा. अरे पेट भरा हुआ है, मैं खाना खा पाऊंगा? नहीं खा पाऊंगा. पेट भरे को कभी भूख नहीं लगेगी. भूख लगेगी जिसको भूख लगी है. मेरे अंदर वो आग है, वो भूख है कुछ सीखने की, नया सीखने की. एंड पर्सनैलिटी वहीं से ही आती है. When we dress well, external appearance तो अपनी अच्छी रखें. हम लोग क्या है, टेक्निक वी आर वेरी. मैं खुद देखा है सर, माफ करिएगा, मेरे वालिद साहब जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वाइस थे, मैंने वहां के लड़के देखा है, वो वेरी गुड, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग. इंजीनियरिंग में भी उन्होंने पेटेंट कर रखी हैं चीजें. टेक्निकली कितने आगे हैं वो. ट्रांस जमुना प्रोजेक्ट, गंगा को उसको साफ करना, वहां तक बात चल रही थी. लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट या शायद हो सकता है टीचर भी कई बार इज नॉट अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड. आर्मी में, फौज में एक नियम है कि हम ऑफिसर मेस में सैंडल या चप्पलों में नहीं आ सकते, हमें शूज पहनते हैं. जीन्स टी शर्ट में नहीं आ सकते, हमको शर्ट ट्राउजर पहननी पड़ती है. कई बार तो वेबिनार में लोग शर्ट ऊपर शर्ट टाई डाल दी, ठीक है, मगर नीचे बर्मा या पैजामा होगा. तो इंटीग्रिटी, बी ऑनेस्टी. मैंने तो बर्म्यूडा पैजामा नहीं पहना, मैं पैंट पहन रखी है, पतलून, तो मैं बता रहा हूँ. खैर वो अलग बात. तो पर्सनैलिटी इज बेसिकली व्हेन वी आर ट्रू टू आवर ओन सेल्व्स, एंड व्हेन वी रीड बुक्स, व्हेन वी आर अवेयर, वी आर तब ही. और मैं आप बताऊं आपको, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग. मैंने इस वक्त सर आप लोगों से बात कर रहा हूँ शर्ट टाई में, पतलून में नहीं, मैंने शूज भी पहन रखे हैं और मेरी बेल्ट टाइट है. फौज में एक है, अगर बेल्ट ढीली है तो मतलब सोल्जर ढीला है. बेल्ट टाइट होगी ना, अगर हम अपने आप को एक्टिव रखेंगे, वी विल फील गुड अबाउट आवरसेल्व्स. एंड ट्रस्ट यू मी, दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है विद आवर पर्सनालिटी जो हम नहीं कर पाएंगे. फेथ मूव्स माउंटेन्स. It's a very simple thing. Personality development is the most simple thing actually. मगर good looking or looking good, वो चूज करिए, वो आपके हाथ में है. शाह भाई, why should the okay, मुझे किसी ने मैसेज किया है, शाह भाई why should we shave reverse? नहीं, जरूरी नहीं है. Don't shave reverse. दाढ़ी रखनी है, रखिए, कायदे से रखिए, उसको अच्छी ड्रेसिंग से रखिए. और अगर शेव नहीं करना है, मूछे भी रखिए. अगर लाइक मैंने मेरे पास दाढ़ी थी पहले, 2.5 साल मैंने दाढ़ी रखी थी, 2.5 साल, बहुत लंबी दाढ़ी थी. मगर एक उसको एक शेप दें. बी हाइजेनिक, अपने आप अच्छा महसूस करें. और जो मैं इत्र की बात कर रहा था, वो इत्र मैंने लगाया है. तो आई डू दैट टू फील गुड अबाउट माई सेल्फ एंड मेंटेन अ रूटीन. भाई जल्दी उठिए, डू एक्सरसाइजेस. किसने रोका है? ध्यान लगाइए, मेडिटेट करिए, योगा करिए, जो भी करना है. हम सुबह उठ के फजर की नमाज पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूं. क्यों और मैंने गौर किया है, जो लोग सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग फजर की नमाज पढ़ते हैं, यानी कि उनके पास बाकी ये नहीं कि फजर नमाज पढ़ के आप हो गए, फिर क्या मतलब. We have at an advantage, we have got more hours than the others. We have a head start. एक साहब जो 12 बजे दोपहर को सो के उठ रहे हैं, he might be looking good, handsome man, खानदान jeans, but good looking, but chose not to be looking good. He will lag behind that many hours. वो इतने lazy होंगे. हमारा तो head start होगी. अगर आपको मैं एक बात बताऊं, आप यकीन नहीं मानेंगे,
सर मैं 4 रात से सोया नहीं हूं, 4 nights। अभी भी आपको एनर्जेटिक फ्रेश लग रहा हूं। आई एम ऑन लॉग इन लॉग आउट, लॉग इन लॉग आउट, लॉग इन लॉग आउट ऑफ वेबिनार्स। ये सिलसिला चलता रहता है मेरे साथ। इतने वेबिनार्स मैं दे चुका हूं और मुझे मजा आता है, बिकॉज आई लव इट, आई एम पैशनेट अबाउट इट। और इसी के लिए ही लोग मेरे वेबिनार्स में अक्सर आते हैं, बहुत लोग आते हैं। मेरे को मजा है, और क्योंकि मेरे को मजा आता है उन तक ये बात, ये मैसेज पहुंचाने का, उनको एनर्जी रिसीव करने में मजा आता है। ये है कहानी। एनीवन वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? और शाहिद साहब का कोई सवाल है, आप उसको इस दफा जवाब दे दें। उनका सवाल है कि जो अंग्रेजी कितनी इम्पोर्टेंट है, जो लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या जॉब के लिए रेडी कर रहे हैं खुद को, तो उनके लिए इंग्लिश कितना जरूरी है? हमारी मातृभाषा उर्दू या हिंदी है ना, मगर रोजी की जबान तो इंग्लिश है, अंग्रेजी है, टेक्नोलॉजी है। जिसको इंग्लिश या टेक्नोलॉजी नहीं आती है, आप ये समझ लीजिए, माफ कीजिए मैं डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं सीखने के लिए अंगूठा छाप के बराबर है। पहले जमाने में जिसको हस्ताक्षर करना आ गया मतलब पढ़ा लिखा है। केरला में इतनी ज्यादा लिटरेसी क्यों है? लोग अपना साइन करना जानते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट यू हैव टू लर्न इंग्लिश एंड नो रॉकेट साइंस। अगर मैं किसी को बताऊं ये बात, किसी को यकीन नहीं आएगी ये बात। आई स्टडीड इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, बट इन कॉलेज सर मेरे को 100 में से अंग्रेजी में 1 नंबर आया था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। इसमें आप चेक करा लीजिए, 1999 में पुणे यूनिवर्सिटी फर्ग्यूसन कॉलेज में इन इंग्लिश, मोहम्मद अली शाह गॉट 1 out of 100 इन इंग्लिश। और अंग्रेजी एक ऐसी ज़बान है, एक ऐसी लैंग्वेज है जहां हर एक एंट्रेंस टेस्ट के लिए, हर एक इंटरव्यू के लिए आपको जाना होता है। माफ कीजिएगा, एक कॉल दोबारा आ रही थी तो इसलिए तो मैं काट दी वो। दैट्स व्हाई द थिंग हंग। तो इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज लर्न एंड इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट लर्निंग। मैं ऐसे से लोगों को जानता हूं जो बुजुर्ग होके तब उन्होंने सीखा। ड्रेस वेल, स्पीक वेल, express well, and all this comes from your thoughts. I told you we are nothing but a mere reflection of your thoughts. अगर हम अच्छा सोचेंगे अच्छा ही होगा। आपको एक छोटी सी कहानी और सुनाता हूं मैं भाई। ये कहानी है 2000 which year was that? हाँ 2012 की। 2012 में मेरे एक साथी थे, उनको कंपनी से नौकरी से निकाल दिया था। इसलिए नहीं कि वो बेचारे कुछ गलत बैठे थे, इसलिए कि वो काफी अच्छी नहीं चल रही थी। आज कितने स्कूल में बात की तो ऐसा भी है कि कुछ टीचर्स हैं उनकी नौकरियां खतरे में हैं आज। क्यों? देखिए, हम फर्ज करिए अगर हिस्ट्री टीचर है, फर्ज करिए एक टीचर 1000 लोगों को पढ़ा पा रहा है। अभी 4 हिस्ट्री टीचर होते हैं, वो एक 30 लोगों की क्लास, 40 लोगों की क्लास, 20 लोगों की क्लास को पढ़ाते हैं, राइट। अब एक टीचर तो हजारों लोगों को पढ़ा पा रहा है, तो बाकी 3 टीचरों का क्या काम? लोग स्कूल ऐसा कहने लग गए जो ऑनलाइन एजुकेशन नहीं दे पा रहा है, लाइक फिजिकल एजुकेशन, उनकी नौकरी खतरे में आ गई। और ये पैंडेमिक बड़ी लंबा चलने वाला है, आई कैन टेल यू दिस। अब क्या करें हम? अब जब हमारी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं, अब मैं इंटरव्यू में गया, मैं शर्ट टाई भी डाली और टेक्नोलॉजी भी आती है, काम भी आता है, मगर अंग्रेजी बोलनी नहीं आती। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो आपको ट्रेनिंग देंगी आपकी कमजोरियों पे काम करने के लिए, उस पर मगर डिपेंडेंट मत रहिए। बी डिपेंडेंट ऑन योर ओन सेल्फ। इफ आई डोंट नो टू स्पीक इंग्लिश, प्रॉब्ली लाइक अगर मेरे को फौज में जाना है, फौज विल नॉट सिलेक्ट मी, सॉरी, बिकॉज आई डोंट स्पीक इंग्लिश, इट विल नॉट सिलेक्ट मी। फिर मैं कितना भी बोलता रहूं कि तासुब हुआ, ये हुआ, वो हुआ, नहीं, तासुब नहीं हुआ भाई, मैंने प्रीरिक्विजिट्स नहीं मीट करी। You have to speak, and there is a difference between a British English,
एंड अमेरिकन इंग्लिश, उसका भी फर्क जानना बहुत जरूरी है। वो मैंने खुद सीखा है, मेरे को 1 साल ट्रेनिंग ली है मैंने इसमें, 1 साल। दिल्ली में कॉल सेंटर है जेनपैक इंटरनेशनल सर्विसेज, उनके साथ काम करके रात भर हम काम करते थे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक गुड, बी वेल ग्रूम्ड। फौज में इतना एम्फोसिस क्यों है टर्नआउट के ऊपर? भाई मैंने इस पे गौर भी नहीं किया, मैंने शूज तक पहन रखे हैं, सैंडल्स नहीं, चप्पलें नहीं, शूज वो पहन के मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को अपने आप अपने लिए कर रहा हूं मैं, ये किसी और के लिए नहीं। एंड आई लर्नड इंग्लिश, आई हैड टू स्पीक इन इंग्लिश फॉर माय ओन सेल्फ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट टू स्पीक इंग्लिश, टू नो टेक्नोलॉजी, टू लुक गुड फॉर एनी जॉब। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? मेरा बहुत टाइम है, आप बेफिक्र रहिए। I have all the time for Impar, so अपना अब सोनिया देख लीजिए। I am very happy to take on questions, and मैं मानता हूँ जैसे सही रिजवान साहब ने बिल्कुल सही फरमाया, it was more of a motivational talk, yes. So अब मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपको जो सवाल है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, I will answer all those questions. सवाल के अलावा मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। जरूर सर, प्लीज प्लीज। जैसा कि आपने कहा था कि आप you were very shy in the beginning in school. I think about 90% people or young boys are shy. It's only a few, like 10 or odd percentage, who are outspoken while in a very junior class. So anyway, so one has to get over that shyness initially, and the earlier you do it, the better it is for your developing your personality. So मैं भी बहुत shy था. I had friends. I was not a loner in school, but I was the quietest among them. I was in La Martiniere. I did my ISC there, and from there I switched over to Colvin for doing my intermediate. तो कॉल्विन में इंग्लिश का थोड़ा प्रयोग बहुत कम था एज कम्पेयर्ड विद ला मार्टिनियर। तो हमारे जो इंग्लिश के टीचर थे और मिस्टर वाईपी सिंह, वो रोजाना मुझसे कहेंगे रिजवान आप उठिए और आप फलाना पढ़िए चैप्टर। आई यूज्ड टू डू दैट। तो लोग कहते थे यार तुम्हें क्यों कहते हैं? हमने कहा पता नहीं क्यों कहते हैं, बहरहाल आई यूज्ड टू डू इट। Then one year, I mean, that was in 71 or rather 72. तो नवंबर का महीना था और 14 नवंबर आने वाली थी। एक दिन पहले उन्होंने मुझसे कहा 13 नवंबर को कि you have to speak tomorrow at assembly on Children's Day. And I started shitting bricks. कहाँ ये फंस गए हम? तो नहीं, आप ही को करना है। And I have already told the principal. अब मैं घर आया, अब मैंने एक बुक को कंसल्ट करी, importance to know the importance of Children's Day. So anyway, मेरी birthday भी is like on the same day, almost on the same day. It is 13th. बट और मैं शुरू से जब दिल्ली में थे तो आई हैड इवन मेट जवाहरलाल नेहरू एट चिल्ड्रंस पार्क। हम जाते थे हम बच्चे लोग, तो ही यूज्ड टू कम देयर एंड हम लोग गोदी वोदी भी उठा लिया था मुझे। तो आई यूज्ड टू टेल हिम कि मेरी भी बर्थडे आज ही है। तो उस दिन साहब मुझे तैयारी करनी थी नेक्स्ट डे टू गिव द स्पीच ऑन चिल्ड्रंस डे एट असेंबली, मतलब पूरा कॉलेज सामने खड़ा है। तो मैंने लिखा और फिर मैंने रट्टा मारा, तैयार कर ली स्पीच। मगर जब स्कूल गया तो फिर मेरे मतलब हार्ट अटैक कैसे बोलेंगे भाई? तो वाईपी सिंह ने कहा आपने तैयार कर ली? मैंने कहा नहीं करी। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बोलना ही है, देयर इज नो अल्टरनेटिव। और थोड़ी देर में जब असेंबली स्टार्ट हो गई और ओवर हो गया, जो यूजुअल सेरेमनीज होती थी, तो ही कॉल्ड मी कि नाउ ही विल कम एंड गिव यू स्मॉल टॉक। तो मैं साहब पहुंच गया और मैंने फिर जो देखा साहब, ना आओ देखा ना ताओ, और मैं बोलता चला गया। जितना मैंने याद किया था उससे भी आगे बोल गया। एंड ऑल इन इंग्लिश।
So Sir. at that stage, I broke my shyness to speak in public. That is essential. Language चाहे अंग्रेजी आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, but in whatever language you are capable of speaking, you must get on to a platform and speak in that language to break that initial shyness. Then you can learn English or Tamil or German or French. But वहाँ पे आपको बोलना है. तो यही मुझे ऐड करना था. Thank you, sir. So, a lot of people come for my webinars, for my online classes, and they say, we want to be good communicators. We are not very, हिंदी उर्दू में बोलते हैं, we are not good at English. तो मैं कहता हूँ भैया अंग्रेजी तो बहुत जरूरी है, मगर communication is different. जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, communication is different and speaking English is different. Yes. अगर आप इंग्लिश अच्छी बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे कम्युनिकेटर बन गए, या अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, जरूरी नहीं है कि आप अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हैं. आप किसी भी भाषा में, आपने बिल्कुल सही फरमाया, किसी भाषा में बोलिए, साइन लैंग्वेज में बोलिए. Even if a person is mute, is deaf and dumb, can communicate in sign language, it's perfectly fine as long as you are being able to put your point across. Yes, but, definitely. So and similarly, education is different and literacy is different. मैं example दिया था वो French का certificate, education and literacy. ठप्पा नहीं, हमारी काबिलियत. Education is what we learn through our own experiences, by reading, by interacting with people. और मैं बताऊं, मैं आज की तारीख में मोटिवेशनल स्पीकर इसलिए हूं क्योंकि मैं जिंदगी में बहुत धक्के खाए हैं, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत तो खैर हम सब करते हैं, उस तरीके से मैंने भी करी है. मगर हो सकता है कि आप सब में से, या शायद मैं तो ये बोलूंगा दुनिया में ऑलमोस्ट आई कैन से मैक्सिमम गलतियां मैंने करी हैं. इसलिए नहीं कि कोई मैं अचीवर हूं या सक्सेसफुल आदमी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं हूं. ये सबसे ज्यादा स्मार्ट, होशियार, अक्लमंद, इंटेलिजेंट, टैलेंटेड हूं, बिल्कुल भी नहीं हूं. मगर इतनी ज्यादा गलतियां करी हैं, इतने ज्यादा फेलियर्स देखे हैं, तो उसी से तो आदमी सीखता है. थैंक यू सर. ह्यूमिलेशंस देखे हैं, जिल्लत सही है, ठोकरें खाई हैं, रिजेक्ट हुआ हूं, हार्ट ब्रेक, हार्ट बर्न, डिसअपॉइंटमेंट्स देखी है मैंने, गिरा हूं, मगर उससे ज्यादा तेज उठा हूं मैं, कि हार नहीं मानी मैंने, कभी नहीं. एंड माई फेलियर्स have become my biggest strength today. सर मैं एक किस्सा और बताता हूं आपको. मैं बंबई में था, अगस्त की बात है 2019 की. बैंगलोर से एक कंपनी है, a private company which wanted me for a motivational talk in English obviously. अब लकी मेरे को I have a flair for languages. मैं थोड़ी बहुत मराठी की बंबई में रह के, जब मैं नागालैंड में पोस्टेड था फौज में, तो मैं नागामी सीखी, और मैं नागामी ऐसे बोलता हूँ जैसे कि इंग्लिश या हिंदी या उर्दू बोलता हूँ, वैसे फ्लुएंट. तो दैट कंपनी आई कुड नॉट गो बिकॉज आई हैड कमिटमेंट्स इन बॉम्बे. उन्होंने सर प्राइवेट जहाज भेजा बैंगलोर से बंबई, और पायलट, एयर होस्टेस और मैं, हम 3 लोग बंबई से उड़ के बैंगलोर गए. मैं टॉक दी और मैं वापस आया. एंड इट वाज, और उस दिन तो सर जितनी मैंने फोटो जिंदगी में नहीं ली होंगी ना, उस दिन मैंने फोटो खींच ली. क्यों? क्योंकि मैं ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, और मैं फोटो खींच के सोशल मीडिया में अपलोड करता गया. So now all this could happen because I could communicate well and I knew the language well. Anyone else? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. बहुत अच्छा लगा मुझे आपको सुन के सर. मैं भी इसी ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हूँ लास्ट 14 ईयर्स से. आई एम आल्सो डूइंग द सेम थिंग. मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ कि मैं अक्सर ये चीजें देखता हूँ लोगों में, बाकी सारी चीजों में एक वर्ड आता है कंफर्ट जोन. हम लोग अपने अपने तरीके से डिफाइन कर लेते हैं उसको, मगर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हम कंफर्ट जोन को कैसे निकल सकते हैं, या क्या आइडेंटिफिकेशन होता है कि हम कंफर्ट जोन में आ गए हैं और हमको कैसे उससे बाहर निकलना है. बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, एंड थैंक यू फॉर आस्किंग दिस बिकॉज योर क्वेश्चन विल बेनिफिट अ लॉट ऑफ पीपल ओवर हियर हु आर लिसनर्स. सुनिए, लाइफ बिगिंस
at the end of the comfort zone. Come to the edge. No, we will fall. Come to the edge. No, we will fall. They came to the edge, डर डर के, but then they flew. गिरे नहीं, वो उड़े. विलियम शेक्सपियर ने कहा था, cowards die many times before their death. The valiant never face death, but once. और आपने जो बात करी, बिल्कुल you hit the nail on its head. जब मैं फौज में गया, शॉर्ट सर्विस कमीशन करने गया था 5 साल का, मैंने फौज छोड़ी नहीं, कंप्लीट करी. जो बात हुई थी वो बात पूरी कंप्लीट करी मैंने. 5 साल होते हैं शॉर्ट सर्विस के, हमारे टाइम पे 5 साल थे, अब 10 साल हो गए हैं. वो 5 साल कंप्लीट करके आया मैं. कंट्रीज लाइक इजराइल, सिंगापुर, कोरिया, कंपल्सरी है वहां पे तो फौज में कुछ चंद एक साल फौज में खिदमत करना. तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं? मेरा ऐसा मानना है. तो मैं गया फौज में तजुर्बा, और मेरा खानदान पिछले 200 सालों से फौज में खिदमत कर रहा था. तो मैं सोचा कि भाई फौज में मैं जाऊंगा. अब 5 साल के बाद I can take a permanent if I want, मगर नहीं, let me stick on to what I had initially I was doing theatre, I was doing plays. अब थिएटर में कमाई होती नहीं है जब तक आप फिल्मों में ना जाएं या टीवी में ना जाएं. तो खैर थिएटर छोड़ के मैं फौज में आया. 5 साल कंप्लीट हुए. अब मैं डर गया. 5 साल हो गए फौज में, सरकारी नौकरी में, सिक्योर प्रोफेशन. अब अगर मैं छोड़ूंगा तो बाहर फिर से दोबारा I have to start afresh. But I left the army, which I would not say leave. I completed my short service stint from the army. I got through IIM Calcutta just when the larva, the caterpillar, thought it's the end of the world. It transformed into a beautiful butterfly. वो अपने comfort zone में था, लावा जो तितली बना बाद में. वो comfort zone से निकल के आया. थोड़ी मेहनत लगी, हाँ, मगर कितना खूबसूरत उड़ गया वो. Similarly, अब मैं नौकरी छोड़ी. मैं फौज की नौकरी नहीं, वो नौकरी तो थी नहीं, जो वे ऑफ लाइफ. मैं महिंद्रा कंपनी में था. उसके बाद एक कंपनी है लोनावला में, उनके साथ मैं सीईओ के ओहदे पे था. मैं एट अ वेरी यंग एज आई बिकेम अ सीईओ. ऑलराइट, अच्छी बात है, लोग बड़ी वेरी ग्लैमरस. भाई ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. दूर से जो चमकता है वो जरूरी नहीं है कि सोना ही हो. भाई रेगिस्तान में मिराज भी तो चमकता है. आपको लगेगा कि पानी है, उसके पास गए, पानी ही नहीं है वो. तो जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ी और मैं बंबई आया अपने सपने साकार करने के लिए, बहुत मेहनत, मुशक्कत और बहुत ही शिद्दत से मैं चाह रहा था कि ये काम हो जाए. और उसी दिन पहले दिन डर था. उसी दिन पहले दिन बंबई में घुसते हुए मैंने विशाल भारद्वाज की फिल्म हैदर साइन करी. और मेरे को उम्मीद नहीं थी ऐसा होएगा. क्यों? क्योंकि मैं हकीकत में फौजी आदमी था और फौजी का रोल था. मिला. दिग्बांशु धुलिया ने वो काम देखा और मेरे को यारा के लिए साइन किया, जो अभी रिलीज होने वाली है 30 तारीख को. और यारा में बहुत ही बेहतरीन रोल है. हैदर में 5 मिनट का रोल था और 5 मिनट में मैं वो काम कर गया जो दिग्बांशु धुलिया ने मेरे को बड़े रोल के लिए साइन करा बाद में. अब मेरे को बहुत सब्र से 6 साल वेट करना पड़ा. 2014-2020 उस फिल्म की रिलीज होने में. I had come out of my comfort zone. I was struggling. अब कंफर्ट जोन में हम खुश है भाई, मस्त है, जैसे रोटी पानी चल रहा है, खाना मिल रहा है, कपड़े पहने को मिल रहे हैं, मस्त है. वही है तो भाई वही रहेंगे फिर हम. You got to be content. You don't have to be greedy. At the same time, you can't afford to get comfortable. जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे ना, हम देखेंगे हम कंफर्टेबल नहीं है, तब हम और मेहनत करेंगे और मुशक्कत करेंगे उस लक्ष्य के पास आने के लिए. So life begins at the end of the comfort zone. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, sir. शाह साहब, इमरान खान साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा और उन्हें इनवाइट करूंगा कि वो भी इम्पार के साथ में इस कारवां से जुड़े और इसको आगे वो भी बढ़ाएं. वो भी एक स्पीकर हैं और इस तरह के काम को वो भी अंजाम दे रहे हैं, तो और दूसरे प्रोग्राम्स के साथ वो भी जुड़ सकते हैं. तो उनका खैर मकदम मैं कर रहा हूँ, इस्तकबाल करता हूँ. ये उनका डिसीजन है कि वो कैसे इसके साथ इसको आगे लेके जाएं. जी शाह साहब. It's really honor for me, sir. I love to join. You can send me the details. और जब भी आप मुझे बोलेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा आपके लिए, सर. इंजला खान will speak to you. Thank you very much. इंजला, अब आप चाहें तो कुछ और क्वेश्चन हो तो ले लें, उसके बाद अदरवाइज आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं.
Sorry? अगर कुछ क्वेश्चन हो तो ले लीजिए, अदरवाइज को कंक्लूड कर सकती हैं आप. Do we have any more questions? Anybody? I guess this brings us to the end, and I extend a jovial vote of thanks to you for sharing your experiences with us and for gracing your important role. Thank you. Thank you everybody. Thank you Major Shah. Thanks a lot. Thank you, sir. Honor. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Impar.